Everybody. First of all, I would like to pay thanks to Vidu sir. He has given me an golden opportunity to stand in front of you all. As I have gotten an opportunity, so I would like to share my experience. I have developed more than two applications, and still one application is under process, and two applications is live on Play Store. First one is Total Paisa. It has more than 10,000 plus downloads just in few months, 2 to 3 months. 10k plus downloads. All the downloads are organic. There are two kinds of downloads: organic downloads and inorganic downloads. In organic downloads, I don't pay a single rupees to Play Store to engage the customers. They just come just by their own intention. That is called the organic downloads. In Total Paisa, it took me more than 5 to 6 months to develop. When first I learned Java from Microtech. So one thing was pinching in my mind: why we are learning Java? I wanted to utilize that programming language in my real life. Whenever I was learning C, C++, whatever I was learning, one thing was pinching me constantly: what is the motto of this programming language? So I wanted to improve it, and I wanted to implement it in real life. So I decided to create an application. I tried a lot from the different sources, from book and online sources. So I decided to go with Java because I already studied a lot about Java. So in Java, first I completed the basics of Java. I did not learn all these things together because I know if I do so, I will definitely forget most of the things. First I tried to start it by taking all the basics of Java, and I learned so many things from YouTube and other platform, and I downloaded Android Studio in my laptop. My laptop does not support Android Studio properly. People say, how do you use? I still use Pentium. It is lower than i3. People don't believe how can you run Android Studio. I know it really runs very slow, but it is personal issue. So I had to create application. So first, one important thing is you should have patience. Patience is very important in coding, because sometimes you would face so many bugs and errors in your program. To fix that program, it might take 10 days, it might take 20 days for a single program. But if you are not concentrated toward your coding, towards your any programming language, you are not into that. So if you are learning any programming language just because you want to get job, so I would like to say, don't do that. If you don't have interest, you are just learning because to get job. So I don't think you will excel in future. So to do something great in your life, you must have interest. So in Java, I really interest in Java and Android Studio. Java, Android Studio, and one more thing, I need to learn XML, that is called Extensive Markup Language. For that, I use Logic in my software, and for that, graphics user interface. Whatever you see in your mobile, it is created with the help of XML, and whatever the logic which is done by this XML, I have used Java. And Android Studio support two software, Java and Kotlin. Kotlin is proposed by Google. That's why Google is forcing nowadays to learn Kotlin, because it is their own programming language. That's why it is forcing. In future, Java may be replaced for Android with Kotlin only. But right now you can use both. So if you are expert, if you are mastered in Java, it is easy to learn any programming language, because if you have cleared the basic, only syntax will be changed, otherwise everything will be same. So for dedication, Total Paisa is still running in more than 10,000 plus devices. You can check it out right now in Play Store. Explain about your app. Okay, in app, this is just a basic app. People say it is a basic app. It does not matter how basic your app is. It is solving the problems of so many people. So this app has an activity, and it will have like we fill in bank when we go. So we write this. It is related to financial sector. We write we have 2,000 rupees currency. We just use quantity
500 rupees and coins also. So here we put 5, so it will multiply 2000 with 5, it will create 10,000 rupees. And by doing that, it will sum all the currencies, and there will be some other feature I can show right now in my mobile. Here it is. It has biometric also. You can use fingerprint to open it. Okay. This is my software. Total paisa. Total paisa. Total paisa I used for Indian currency. Paisa. It has. I have used 3 fragmentation. Fragment. One fragment calculation. Second one is detail, and third one is history. In history, you can save your data and see in future whenever you want. And it has so many other features, and it has GST calculator also. In GST calculators, I have written more than 20 to 30,000 lines of code for that application. Because in Android, if you are in web development, even if you make 1 or 2 mistakes, it is okay. But in Android, not even a single mistake is acceptable. Your app will be crashed. So that's why it is very mandatory to take care of your applications, and it looks like that. And if I show it in my Play Store, so I would, okay. And I do a little bit advertisement for for engaging customers. I took the. Are you looking for a cash denomination calculator to make calculations in Indian currency? How about using an all-in-one cash counter and GST calculator app? Total Paisa is a cash and coin counter app specially designed for Indian users to tally cash daily. Be it banking purposes or keeping account of your cash, this cash counter is very useful to the teller who is working in the financial sector. What's even more beneficial is that you can share the cash calculator data to any platform, like WhatsApp, Messenger, SMS, with anyone. Download Total Paisa app from the Play Store now. So I took the help of freelancing, where I just got the help of her. She lives in America, and she asked me for 2,000 rupees for making that video. Yeah, 2,000 rupees. You would get so many clients for your help, so they can do it. And I designed. I did not design it by myself because I could design, but not like that, because I was not expert in designing. So in just 400 to 500 rupees, they designed me screenshots to engage the customer. No matter how much software you have, if you are not able to express it, customer will not come to your portfolio. So it is very important to express yourself. And that's it. And I'm working for many other applications. One is MathPy. It has more than 1 lakh lines of code. 1 lakh. It will have 110 plus reasoning questions, and it is also here but not published on Play Store right now. This is MathPy. It has Processing is going on. Yes, sir. It has 110 levels. I am 110 level will be there, and there will be reasoning questions, level, sound, exit. All the just I'm starting with simple. Don't go with broad one, because your mind will be messed up if you go with broad. Start with simple one, and then day by day you will improve yourself. That's it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. BCA 5th semester at Microtech Management and Technology. सबसे पहली बात, जब हम लोग आए थे बीसीए में, बीसीए से पहले सबसे बड़ा रहता है टैग कि बीसीए है क्या। सबसे पहले जब 12 से निकलते हैं, एक आता है ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीसीए। तो फिर बीसीए जब आए थे तो बीसीए के बारे में पता चला कि अच्छा बीसीए कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट है। फिर बीसीए में जब हम लोग क्या करते थे कि जब पहले हम लोग को 12th में था तो बीसीए बस पेंट तक था, एक्सेल तक था, बस बीसीए यही है, और कंप्यूटर का यूज इतना ही होता है। माइक्रोटेक में आया या फिर अपने बीसीए अपने ग्रेजुएशन लेवल में आया तो फिर पता चला कि अच्छा लैंग्वेज भी बहुत सारे हैं जिससे हम लोग कंप्यूटर पे कमांड कर सकते हैं, और बहुत सारे एप्लीकेशन भी बनाते हैं जो कि आजकल पूरा इन्वायरमेंट में है, अपने ग्लोबल में है। उसके बाद फिर कोविड में, कोरोना में हर एक सेक्टर प्रभावित हुआ था, इफेक्ट हुआ था। हाँ, लेकिन आईटी सेक्टर नहीं हुआ था। आईटी सेक्टर सारा काम डिजिटल है, ऑनलाइन है, आप घर से बैठे बैठे आप काम कर सकते हैं। आईटी सेक्टर से बहुत सारे भी ऐसे एप्लीकेशन भी थे जो कि बहुत हेल्प हुए और बंद भी नहीं हुए। नॉर्मली सब कुछ चलता रहा, आईटी वाले कभी बैठे नहीं।
और आया सबसे पहले BCA में आया तो सबसे देखा कि लैंग्वेज है, डॉस है, काला काला स्क्रीन है, क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर सर से डिस्कस किए इस बारे में, तो बताया कि अच्छा ठीक है ये ऐसे ऐसे होगा और आगे भी और बहुत सारे चैलेंजिंग राउंड है जो कि अभी देखना, और बहुत सारे लैंग्वेज भी आएंगे। फिर C में आया तो C क्या है, सबसे पहले हैज इंक्लूड, हैज स्टूडियो, ये सब था C का। तो क्या होता है ये सब कुछ नहीं पता। सर से बैठ के पूछा तो सर ये बताएं कि अच्छा ये सब है, इसमें लॉजिक होता है। उसके बाद फिर इस तरह करते करते पहले तो BCA को समझने में एक सेमेस्टर निकल गया। उसके बाद फिर दूसरा सेमेस्टर आया तो तुरंत BCA के कुछ दूसरा सेमेस्टर में C++ टाइप में चालू हो गया। तीसरा भी इसी तरह था C++ में। चौथा में जब ये सब हो गया फोर्थ सेमेस्टर में कि पूरा जितने भी लैंग्वेज हम लोग के हैं, अब समझ में आएगा कि अच्छा ये कंप्यूटर के लैंग्वेज है, इससे एप्लीकेशन बनते हैं, ये लॉजिक के लिए हमारे, ये भी बहुत कुछ आगे एप्लीकेशन बनाने के लिए, जो कुछ भी बनाने के लिए यूज होता है ये सब लैंग्वेज से ही बनता है। हम लोग का हिंदी इंग्लिश वहाँ काम नहीं आता है। उसके बाद फिर आया जावा में, तो जावा में बहुत सारे हमें चैलेंजिंग राउंड भी मिले, प्रोजेक्ट भी मिला। अभी बताया हेमंत ने कि प्रोजेक्ट हम लोग का चल रहा था हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम पे। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात यह है कि लैंग्वेज सीखना ही जरूरी नहीं है, लैंग्वेज को कहाँ हमें यूज करना है, या कोई भी चीज जैसे कोई भी जैसे जावा सीख लिया, C++ सीख लिया, जावा कुछ भी सीख लिया, तो एक होता है कि कहा जाता है कि प्रोजेक्ट बनाओ। तो प्रोजेक्ट बनाने का मेन मोटो ये होता है कि जितना आपने सीखा है अभी तक वो पूरा इनबिल्ड हो जाना उसमें। उससे सबसे बड़ी लॉजिक क्लियर होती है। आप तो सीख हैं, ठीक है, पता चल कोई प्रोग्राम दे दिया आपको, आप उससे कैलकुलेटर या किसी भी तरह के कोई प्रोग्राम करके आप बता देंगे कि ये ऐसे ऐसे और इतने लॉजिक में होता है। लेकिन जितना आपने सीखा था या जितना लैंग्वेज आपने सीखा है उसको एक प्रोजेक्ट के थ्रू आप दिखा सकते हो कि मैंने इस जगह इसका प्रयोग दिमाग लगाया था, यहाँ पे इसका इस कॉन्सेप्ट का यूज किया था, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का यूज किया था। तो प्रोजेक्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा जितना आपका नॉलेज होता है सब वहाँ आके एक जगह लग जाता है। और सबसे बड़ी बात जो पेशेंस की बात होती है, पेशेंस सही बात है कि कोई भी लैंग्वेज या कुछ भी आप करते हो तो उसमें पेशेंस की सबसे ज्यादा नीड होती है। तुरंत से अब ये नहीं है कि कोई एकदम आता है तो तुरंत उसके बारे में स्पेशलाइज हो जाता है कि नहीं मुझे सब कुछ आता है, हर कुछ मैं कर सकता हूँ। नहीं, पहले धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है कि सीखा जाता है। इसलिए हम लोग को बोला जाता है कि सबसे पहले C में भी पढ़ाया गया होगा कि मदर लैंग्वेज क्या होता है, C होती है। तो C पहले लॉजिक बताती है, फिर उसके बाद C++ आएंगे, C++ से फिर जावा, पाइथन। इतना है कि आप पूरा कवर करके उसके बाद फिर आप अपने अनुसार जो भी आप सीख लोगे तो आपके पास खुद ही हर कुछ हो जाएगा कि मैं अपने से उसका फिर अपने अंदर से नीड भी होने लगती है कि मैं क्या करूं, कैसे क्या एप्लीकेशन बनाऊं, क्या ना बनाऊं। ये सब होता है। कोडिंग में जिसका मन नहीं लगता उसके लिए कुछ दो शब्द। कोडिंग कुछ वो नहीं है, ज्यादा इतना हैवी कुछ नहीं है। नॉर्मली देखा जाता है कि कोडिंग किस तरह हो रहा है, कोडिंग जैसे हो रहा है, कोडिंग का एक लाइन मेन समझना जरूरी होता है कि कोडिंग किस तरह यूज होता है, कौन से लाइन पे कैसे क्या यूज होता है, और इससे मेरे को इस लाइन से मेरे को क्या हो रहा है। बस उसके बाद जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप कोडिंग करते चले जाओगे, एक लाइन समझ में आती रहेगी तो खुद इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा आगे के लिए। थैंक यू सो मच। अरे कोई यू कैन यूज एनी लैंग्वेज, बट इंग्लिश पे आप लोग काम करिए। कम्युनिकेशन शुड बी मस्ट इन ईच एंड एवरी कंपनीज। First of all, I need to introduce myself. My name is Hemant Madeshya. First of all, I need to introduce myself. My name is Hemant Madeshya and I am pursuing BCA from Microtech College of Management and Technology. Here I am in first semester. I used to learn. I used to code in C language. I make my logic from C language, and apart from C language, I'm not focusing on any other language. I'm coding. I need to code. मतलब कि C लैंग्वेज से सारी बेसिक्स नॉलेज लेने के बाद उसके बाद किसी लैंग्वेज पे हम रुके नहीं। जावा मिला तो जावा पे कोड किया, पाइथन मिला तो पाइथन पे कोड किया, C++ मिला तो C++ पे भी कोड किया। क्योंकि साफ जितने भी सारे लैंग्वेज है सारे में से सिंटैक्स अलग होता है, बाकी लॉजिक तो सबका सेम होता है। तो लॉजिक सीखने में ही जो टाइम लगा पहला सेमेस्टर, एक्चुअली ऐसा था कि पहले सेमेस्टर में तो बिल्कुल लॉजिक आया ही नहीं। ऐसा लगता था कोड सारा रट करके पास होकर के आ रहे हैं। उसके बाद फिर सेकेंड सेमेस्टर आ गया, लॉकडाउन भी लग गया, बीत गया, C++ भी बीत गया, फिर भी कुछ नहीं आया। जैसे कुछ भी नहीं पढ़ रहा है कि यार लिखा क्या है आखिर। फिर थोड़ा सा माइंड डाउट में चल रहा था। उसके बाद लैपटॉप भी नहीं था स्टार्टिंग में, तो कुछ में बिल्कुल भी जो नीड मिलता था यहाँ के सिस्टम से ही मिल पाता था। लॉकडाउन लग गया और प्रॉब्लम बढ़ गई। और ऐसा होता था कि यहाँ पे आने के बाद जो कोड कर लेते थे घर पे लॉकडाउन की वजह से वो भी नहीं होता था। या तो दिन गेमिंग में बीत जाता था
या तो ऐसे नॉर्मली डे निकल जाता था। मोबाइल में। यस सर। फिर उसके बाद जब थर्ड सेमेस्टर भी बीत गया लगभग, फिर उसके बाद जब लॉकडाउन बीच में खुले तो फिर थोड़ा रियलाइज होने लगा, अंदर से थोड़ा डर लगने लगा, कुछ आ ही नहीं रहा, बस पास किए चले जा रहे हैं, गवर्नमेंट प्रमोट की जा रही, डर भी नहीं है पढ़ने लिखने का कुछ। उसके बाद वापस से सी को पकड़े, सारे देख रहे हैं सब कुछ तो वही है, जावा में फॉर लूप यूज करते हैं, सी प्लस में भी वही फॉर लूप यूज करते हैं, सिंटैक्स अलग था, सी में भी वही सब यूज करते हैं। तो सी का ही थोड़ा बहुत नॉलेज है जो फर्स्ट सेमेस्टर में रटे हुए थे, वही सारा सिंटैक्स याद था, तो सोचे सी को ही पकड़ते हैं, फिर पहले लॉजिक बिल्ड करते हैं। कितना बड़ा टाइम आप मिला था कॉलेज में कोडिंग के लिए? सर स्टार्टिंग में तो न्यू था, सबको न्यू में बड़ा जोश रहता है, सुबह से बैठते थे शाम हो जाता था। तो फिर सेमेस्टर भी था, रट करके तो पास हो गए, पहले सेमेस्टर सर रट कर बिल्कुल पास। हाउ टू इम्प्रूव योरसेल्फ, एक्सप्लेन अबाउट कैसे आपने अपने आप इम्प्रूव किया? फिर सर सी से स्टार्ट किया, एफएल से यूज़ किए पहले, छोटे मोटे प्रोग्राम जैसे एरिया वगैरह निकालना, डिसीजन मेकिंग पहले सीखा कि कोई प्रोग्राम डिसीजन कैसे लेता है, डिसीजन पे काम किए। फिर कोई प्रोग्राम में लूप की जरूरत पड़ी तो पड़ी क्यों आखिर, पहले ये जाना। फिर जब देखा कि किसी चीज़ को वापस से कई बार आइटरेट करने के लिए हमें लूप की जरूरत पड़ती है, लूप के बिना हम प्रोग्राम में किसी चीज़ को वापस आइटरेट नहीं कर पाएंगे, एक बार वो रन किया तो वापस ऊपर नहीं जा पाएंगे, तो लूप सीखा। फिर लूप जब सीखा तो पता चला इसमें 3 और लूप है, एक वाइल है, एक डू वाइल और एक फॉर लूप है। और वाइल जब बना लूप के लिए तो उसमें डू वाइल क्यों बनाया गया और फिर उसके बाद फॉर लाया क्यों गया, रीजन? यस सर। तो इस रीजन को पहले जानना सर, थोड़ा रीजन पता होता है तो थोड़ा इंटरेस्ट आता है कि हम उस चीज़ को कर क्यों रहे हैं। तो वाइल लूप, जैसे वाइल लूप के बारे में जाना तो इसका ऐसा पता चला कि वाइल लूप में हमें कंडीशंस, और फॉर लूप की कुछ प्रॉपर्टीज है, फॉर लूप इनलाइन लूप होती है, उसमें सारी कंडीशंस और इम्प्लीमेंटेशन इंक्रीमेंट एक लाइन में कर देते हैं। डू वाइल पहले हम किसी काम को करने के बाद लूप चलाना, तो डू वाइल ऐसे वाइल सर, ऐसे सारे लूप के कुछ न कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसको पूरा करने के लिए दूसरा लूप बनाया गया, तो इसको जाना। फिर ये सब कुछ बेसिक्स क्लियर करने के बाद देन आई एम स्विचिंग, जब सारी बेसिक्स हो गई, सारी जब प्रोग्रामिंग जितनी मुझे लगा कि अब मेरे सारा बेसिक्स हो जा रहा है, मैं लॉजिकल बेस काम कर ले रहा हूँ, तब मैंने उसके बाद जावा पर फोकस किया, जावा बेसिक्स किया। बोरिंग लग रहा था जावा से, शुरू से पाइथन देखे हुए थे, पाइथन बहुत इजी लग रहा था, पाइथन से काफ़ी अच्छे अच्छे टास्क भी हो रहे थे, तो जावा किए हैं, अभी भी जावा करते ही हैं। बट जैसे ही मेरा मेनली सी कंप्लीट हुआ और जैसे मैंने लैपटॉप मेरे हाथ में आया मेरा पर्सनल, वैसे फर्स्ट डे से हम पाइथन स्टार्ट करना। तो सर 2 महीना लगा ऑलमोस्ट पाइथन पूरा सीखने में, एडवांस तक, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। बेसिक तो सारे लैंग्वेज का सेम होते हैं बिल्कुल। फिर पाइथन सीखे, पाइथन के बाद स्टिल आई एम वर्किंग ऑन NumPy, लाइब्रेरी ऑफ पाइथन, एंड स्टिल आई एम वर्किंग ऑन अ वर्चुअल असिस्टेंट विच इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसमें स्टिल इट इज इन डेवलपिंग मोड, अभी उसको तो काफ़ी टाइम लगेगा बनने के लिए। बन चुका आपके थ्रू? हाउ मेनी? इन जावा से प्रोजेक्ट है मेरे पास विच इज हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, विच इज आवर माइनर प्रोजेक्ट इन जावा। उसके बाद पाइथन से जैंगो फ्रेमवर्क है, जैंगो से यूज करके मैंने एक वेबसाइट डेवलप किया है विच इज 60% ऑलमोस्ट कंप्लीट डेटाबेस के साथ, बैकएंड एंड फ्रंट एंड बोथ। उसका वर्क क्या है, काम है? सर इट्स अ फूड प्रोसेसिंग वेबसाइट, उससे हम कई मल्टीपल टाइप्स के से फूड को सेलिंग करना, मतलब दिस वेबसाइट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस एज वेल। अब मैं उसको मॉडिफाई करके उसको मार्केट में सेल कर सकता हूँ। बिल्कुल, अगर कोई शॉपकीपर है जिसकी फूड की स्टोर है, वो फूड काफ़ी सप्लाई करना चाहता है, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स आइटम हैं, मे बी फास्ट फूड को भी कॉर्नर है, तो वहाँ पे बूट स्टैक का यूज़ करके काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव लुक आया है वेबसाइट, मतलब ऑटोमेटिकली ब्राउजर ऑटोमेटिकली मूव करते रहते हैं, नीचे सारे सेगमेंट लाइन बाई लाइन दिए हैं। अगर कोई हमें कस्टमर हम लोग से कनेक्टिविटी करना चाहता है, उसके लिए कॉन्टैक्ट है जो कि डायरेक्ट एसक्यूएल के डेटाबेस में जो भी वो एंट्री देगा वहाँ से डायरेक्ट एक्चुअल के डेटाबेस में उसको मिल जाएगा, जो कि हम चेक कर सकते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर। वॉइस कमांड से आपने यूज़ किया उसको? स्टिल आई एम यूजिंग, सोच रहे हैं उसको यूज़ करके, जैसे गूगल इमेज यूज़ करके हम लोग वॉइस कमांड यूज़ करते हैं, बट मैं उस पर अपना खुद का इंजन डालूंगा जो मैं भी डेवलप कर रहा हूँ। मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइक्रोसॉफ्ट का पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर, इससे वो टेक्स्ट को लेता है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है टेक्स्ट में, और गूगल जो हमारा वॉइस को लिसन करके वर्क टास्क हम एग्जीक्यूट कराता है, वही सेम इंजन हम अपने पाइथन की उसमें यूज़ कर रहे हैं। स्टिल इस टाइम हमारा असिस्टेंट से आप
48 डिफरेंट टास्क वो स्पीक करके हम करा सकते हैं। ऐसे हमारे पूरे इस टाइम स्टिल मैंने अपने पूरे लैपटॉप पे कंट्रोल किया हुआ है, इससे उससे से हम ऑन कर सकते हैं, वो स्पीक से ही ऑफ कर सकते हैं। मैं उसे जीमेल भेज सकता हूँ, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, कुछ भी ओपन करना, कुछ भी क्लोज करना, सब कुछ। 48 आई थिंक इट्स 48 टास्क। आज मैंने सुबह इसमें ऐड किया है, हम लोग कैसे वाईफाई का पासवर्ड ट्रैक कर सकते हैं। जैसे मुझे उसमें स्पीक करना है तो मेरा पासवर्ड है ना, वो मुझे अवेलेबल वाईफाई रहेंगे अराउंड, यस सबका पासवर्ड बता देगा। जैसे वो ट्रैक करके नीचे डिस्प्ले में शो कर देगा। मोर देन लैंग्वेज। तो अभी इसके बाद से मैं सर अभी यही है। कोडिंग किसी को शेयर नहीं करना होता। नहीं सर वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल कोडिंग है, मे बी सर उसको मिसयूज किया जा सकता है। वाईफाई नहीं सर, बैकग्राउंड के लिए सर, इसलिए। ठीक है, और क्या किया है कुछ नया और क्या करने वाले हैं? सर अभी तो नमपाई पे वर्क कर रहे हैं। नमपाई पे वर्क करने के बाद मैं पैंडास पे जाऊंगा। नमपाई बेसिकली साइंटिफिक स्नैक वाला गेम हो गया कंप्लीट? यस सर, इसने गेम कंप्लीट है। वो कैसे बनाया आपने एक बार? स्नैक गेम जो है एक जनरल सा गेम है, बहुत ही जनरल सा गेम बिल्कुल। उसका स्नैक भी जो है वो कोई 3D इमेज नहीं है, जस्ट एक बॉक्स है जो बढ़ता रहता है। जस्ट इसमें लूप लगा हुआ है, जितनी बार वो फूड रीड करेंगे उतनी बार बढ़ जाएगा। पाई गेम एक मॉड्यूल होता है पाइथन का, पाई गेम मिक्सर वगैरह। तो गेम के सारे लूप्स उसी से कंट्रोल होते हैं, म्यूजिक बैकग्राउंड में सारा उसी से कंट्रोल है। तो जस्ट ये बहुत ज़्यादा बड़ा गेम नहीं है। आई थिंक इट्स 150 लाइन्स ऑफ कोड। अभी अगर फ्यूचर प्लान्स की बात की जाए तो अभी मेरा मन बिल्कुल पाइथन के साथ ही जाने के लिए है। इसलिए नमपाई लगभग होने वाला है नमपाई, उसके बाद पैंडास, उसके बाद मैटप्लॉटलिब को कवर करने के बाद फिर टेंसरफ्लो। जिसका मन इन सब चीज़ों में नहीं लग रहा है उनके लिए क्या करना चाह रहे हैं? फिर जिस चीज़ में मन लग रहा है वो करना चाहिए, क्योंकि मन लगा होता है तभी काम हो पाता है। बिना मन से कोई काम करना मुश्किल है। इंटरेस्ट, अभी पेशेंस की बात हो रही थी। यस सर, पेशेंस होना तो बहुत जरूरी है, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तभी पाइथन करते हैं। जैसे सर कल आपने प्रोग्राम दिया तो मैं रात को जावा कर रहा था बैठ करके, पाइथन पर छोड़ करके फिर आज सुबह उठा तो फिर सुबह पाइथन कर रहा था। अभी लैब में बैठ कर डेटाबेस कनेक्ट करा लेते हैं। तो उसका इंटरेस्ट ऐसा कुछ नहीं है कि सर वो है बस कोड पे मन लग रहा है तो कर रहे हैं, वरना नहीं मन लगता तो नहीं करते हैं। प्रोजेक्ट पे जरूर काम करिए, प्रोजेक्ट पे काम करना काफ़ी ज़रूरी है, एक्सपीरियंस मिलता है। यस सर। चलिए अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इस रिलेशन में जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। मन नहीं लग रहा है आप निकल के जा सकते हैं। असल कल आप मिलेंगे तो हम बहुत आपके दुश्मन होंगे, ऐसा नहीं, समझ गए? सर फर्स्ट टाइम हम लोग बीसीए में जब आए थे, नाम एक सेकंड। आई एम इन बीसीए फ्रॉम माइक्रोटेक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। सर यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट टाइम बीसीए 12 पास आउट करके यहाँ पे बीसीए के लिए आया था, तो बीसीए में जब मैं आया था तो कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे थी, फंडामेंटल की। तो मुझे यहाँ पे मृगांक सर फर्स्ट टाइम पे मिले थे, जो कि हम लोग को फंडामेंटल और पीसी पढ़ाते थे, और सुमित सर हम लोग को मिले थे जो कि सी लैंग्वेज पढ़ाते थे, और सुशील सर मिले थे जो कि हम लोग को ओएस पढ़ाते थे। सर तीनों टीचर हम लोग के सपोर्टिव थे। सर हम लोग के बहुत मतलब मदद करते थे। जब हम लोग शुरुआत में आए थे यहाँ पे तो हम लोग के साथ में जैसे हमें तो कुछ थोड़ा बहुत फंडामेंटल की जानकारी थी, लेकिन हमारे क्लास में कुछ ऐसे लड़के थे जो कि यूपी बोर्ड से होकर के आए थे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, जिनको कि कंप्यूटर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। उन्हें माउस कैसे यूज किया जाता है वो भी नहीं पता था। तो सर लोग के पास इतना जैसे हम लोग इतना करके आए थे, सर लोग हमें डांटते भी थे कि तुम लोग कितने बड़े हो गए, तुम लोग को अभी ये करने नहीं आता, सीबीएसई के बच्चे यहाँ पे हैं, देखो वो लोग कैसे करते हैं। उन लोग का ये कहने का मतलब था कि वो उनसे थोड़ी सी लज्जित होकर हम लोग कुछ सीखें। इस वजह से हम लोग को सर वो शर्मिंदा करते थे क्लास में खड़े होकर के। जैसे सभी लोग सुशील सर से थोड़ा सा डरते थे, क्योंकि वो क्लास में सबको खड़े करके लज्जित कर देते थे कि तुम ऐसे कर रहे हो। छोटे बच्चों को जाकर देखो, क्लास 7 के क्लास 6 के बच्चों को देखो कि कैसे करते हैं। लेकिन उनका ये मोटो नहीं था कि वो हमें क्लास में शर्मिंदा करते थे, किसी के सामने झुकाते थे। उनका ये मोटो था कि हो सकता है वो क्लास में थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करके घर पे जाकर के वो अपने से पढ़े कुछ नॉलेज यूट्यूब से। उस समय हम लोग के टाइम पे जब से हम लोग पढ़ रहे हैं, बीसीए में जब से आए हैं, हम लोग के पास मोबाइल की फैसिलिटी हो गई है बढ़िया, हम लोग यूट्यूब से और हर जगह से पढ़ लेते हैं। इसलिए सर बोलते थे कि ऐसे ऐसे करो, और हम लोग अभी तक इस लैंग्वेज हम लोग को सिखाया गया। हमें सी लैंग्वेज के बारे में जानकारी नहीं थी, तो सी लैंग्वेज हमने सीखा सर से। उसके बाद धीरे धीरे लैंग्वेज मेरा फोकस जो था कि अभी तक मैं सी लैंग्वेज पे ही वर्किंग ज्यादातर करता हूँ। यस सर। क्यों बनाया प्रोजेक्ट आप? सर बाइनरी नंबर कन्वर्टर बनाया था सी लैंग्वेज से ही, जो कि बाइनरी मैं अगर बाइनरी नंबर डालता था तो ऑक्टल नंबर, हेक्सा नंबर और डेसिमल तीनों को प्रोवाइड कर देता था।
सर ऐसे डेसिमल आता था तो उन तीनों का जो अवेलेबल लैंग्वेज ऐसे बनाता था सर। उसके बाद मुझे कॉलेज से जावा पे प्रोजेक्ट मिला सर। प्रोजेक्ट में मैं वर्क इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि सर मैं इधर भी 3-4 महीने से मैं इंटर्नशिप कर रहा था। अच्छा सर कॉलेज से ही मुझे मिला था ये तपस्विनी IT सोल्यूशन में। सर तपस्विनी IT सोल्यूशन में मैं कुछ सीखने के लिए गया था, सीखने के मोटिव से सर। वहाँ पे सीखने को भी मिला वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। एंड्रॉइड पे मुझे सीखना था, एंड्रॉइड वहाँ पे मुझे नहीं मिला, इस वजह से मैंने ड्रॉप आउट करके फिर से कॉलेज ज्वाइन किया। मुझे पता चला कि सर ने जावा पढ़ाना फिर से स्टार्ट किया है, तो जावा की क्लासेस मैं लेने आता हूँ। और सर इस बार और अभी इस समय प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते रहिए बस सर थैंक यू सो मच। My name is Arvind. I plan to join. I have completed networking engineering in Jatking Varanasi. I am 70% BCA Microtech College Varanasi. जब मैं BCA में आया था, मैं पहले इसके बाद कंप्यूटर पर हिसाब था। उसके बाद कंप्यूटर मैंने पढ़ा सब, तो मतलब मेरा कि कंप्यूटर में अच्छा वो कुछ है, मैंने पढ़ लिया सब कुछ। जॉब जब पारी आई, जॉब करने गए तो वहाँ पे मतलब वो नहीं जैसे हम जब दूसरे था नहीं, 10,000 8,000 मिला। क्या 8,000 क्या होगा, कुछ ना रहे नहीं समय। जब सब ग्रेजुएशन कर लेता हूँ तो मैंने BA नाम लिखा दिया। तो मतलब BA कर रहा हूँ, उनका BS की मैच नहीं कर रहा, मेरा जो पढ़ रहा हूँ। तो वहाँ पे सब काम कर गया था, इन्होंने नाम पता काम नहीं कट गया, फिर मैं मैक्रोटेक में नाम लिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे BCA करने लगा। तो फिर जब मैं आया तो सिलेबस चला था BCA का। उसके बाद मैं क्या कैसे पढ़े, तो थ्योरी खाली हम रट के पास हो गए फर्स्ट ईयर में। उसके बाद सेकेंड ईयर में जब गए तब ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू 3 घंटा तक क्लास करा था। क्लास करते थे लगातार। क्लास करने के बाद फिर भी हाँ ऑनलाइन में समझ आ रहा कि कैसे कोडिंग किया करना था, जो मुझे अच्छा से पूछते थे वहाँ पे। फिर सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया सर। थर्ड ईयर में जब गए तो काफ़ी डिप्रेस कोडिंग आ नहीं रहा है, सब कुछ ये सोच से कुछ प्रोसेसर पर हो नहीं रहा है। काफ़ी डिप्रेस हुए, तो छोड़ते सब। लेकिन काफ़ी फास्ट दिया, नाम लिखा, पापा मम्मी कही तुम्हारी मिला ऐसा तुम लिखाया तो समझो बोले। मम्मी बोली सब लोग पापा बोलते थे लिखा तो समझो बोला। तब तक क्या कहते हम लोग ग्रुप पे बहुत लगभग खबर है। और अंजू भाई, अरे सॉरी अनिल भाई और अपना कॉलेज जाट है, सब लोग सब वीडियो देख के बहुत काफ़ी मोटिवेशन मिले हैं। काम में करवा रहे हैं उनको बताए हैं। तो उनका देखने पर मेरे कोडिंग में कुछ है नहीं, खाली पढ़ना। तो हमने खुद से अपने से सेल्फ जावा टिकवाया, विद और वेब स्कूल उससे कोडिंग सब किया। और सर पूछा था उनको कट हो जाए तो वहाँ से किए। तो कोडिंग जावा में काफ़ी इंटरेस्ट पड़ रहा है, जावा में काफ़ी अच्छा पकड़ रहा है। और अभी जो डायरेक्ट कोडिंग करेंगे जो मतलब एग्जाम लिखने के बाद इसमें इंटरेस्ट उसको स्टार्ट कर रखा हूँ, लेकिन नहीं कर रहा हूँ अभी। एग्जाम मिल जाए उसके बाद। हाँ तो अभी वो GUI सीख रहे हैं, जावा से जाओ। और उसके बाद चल रहा है ऐसे प्रोजेक्ट बना रहे हैं अभी। कॉलेज में कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए ना कभी सबसे किसी टॉपिक को लेके, कुछ किसी को लेके? नहीं सर, हमें बस हमसे नहीं नहीं स्टॉप नहीं कर। सब सही है। और कुछ बोलना है कैमरे में? आगे चल के कल बोलना है कोई संदेश, कोई मैसेज बच्चों को? फिर आगे बढ़े, क्यों कर रहे हैं? आगे बढ़िए, मैं हूं ना साथ में। आगे हाँ, बोलिए मैं कैमरे में। सर ने सब बोला था कि अगर आप मतलब पढ़ाई कर रहे हैं तब वो नहीं आ रहा है तो दौड़िए, नहीं दौड़ पाए तो दौड़िए, और दौड़ने के बाद घिसिए। सर का मतलब मैं सुना था तो काफ़ी इंप्रेस हुआ था। तो ऐसे जो नहीं है तो एक दिन में कोडिंग करो, रात को सो करते कुछ न कुछ करो। मतलब इसे सोचते हैं गर्लफ्रेंड में मतलब टाइम फालतू वेस्ट होता है। फालतू इतना तो अपना कर नहीं पा रहे पढ़ाई लिखाई उसमें। लड़की दोस्त खराब नहीं होती, मतलब खराब नहीं हो रहा है। अपने पास टाइम था है इसमें अपना काम नहीं हुआ तो उनको कहाँ टाइम दूंगा, तो वहाँ भी लोग बच जाए। ये मेरा मैसेज करो, टाइम में डिपेंड करो, फालतू का तुम्हें कर दिखा कर जाते आप क्या करते हैं उसके बाद जब जाएंगे जॉब में तो आप जाएंगे। 12th में कैसे हो गया, भाग गए कैसे? नाच मौज गया था 9th में भी मोबाइल मिल गया तो मोबाइल तो ऑटोमेटिक बात कर शुरू हो उसके बाद तरक्की पे रिले नेटवर्किंग पढ़े हैं पहले। काफी अच्छा स्टोरी है। अभी अब यहाँ कॉलेज में कोई नहीं, एक्सपीरियंस बोलता है।
हाँ, तेज बोलो एक तेज, हाँ। तेज बोलो क्या मॉडल माल बस ये कोई पता लगा कि मतलब काम कर रहा है बहुत मारे बहुत मारने के बाद फिर होता है प्यार हो गया तो फिर उसका मार के उसके बाद भी हम माने नहीं बात करते हैं हम तो इतना व्यस्त हो चुका है कुछ बड़ा हो गया ना मतलब कुछ है नहीं बड़े बात कर रहे हैं हमका नहीं अपने सब ठीक देख के लिए हमका नहीं कुछ करना है पढ़ाई करना है बस तो कैसे फिर दूर हुए कैसे छोड़े अपने से उसमें होता क्या है आपको कुछ होता क्या भाई शांत हो। उसको हो गया तो आप छोड़ेंगे लेकिन ना होता है ना मतलब जब तुमने खुश हुआ तो लगाव हो जाता है खराब नहीं है आगे वाला ऐसा मिल जाए ना आपकी ग्रोथ के बारे में वो भी सोचे आप उसके ग्रोथ के बारे में सोचे पढ़ाई लिखाई के बारे में आप तो चीज़ें सही हैं माइंड जब समझ रहे हो ना हाँ वही चीज़ है बस सेम स्ट्रीम सेम सोच होना चाहिए शादी के बाद हमारा पढ़ाई करना काफी हम हैं तो और कुछ शेयर करना है जो लोग बैठे हैं इन लोगों के लिए कोई सर से बोल रहे थे कि सर कैसे मतलब नॉलेज लोग बोल नहीं पाते हैं आप आते हैं तो कैसे बोलना है खाली हवड़ा के मतलब बोल नहीं पाते तो सर से बोल रहे थे कल की सर कैसे हमको बताना है सर बोले आओ यहाँ पर तुम्हारा जो लग जाए भाग जाए सर इनको मैं पूरा दिन शुरू से ऊपर फ्लोर में घुमाए इनको ऊपर लेके गए हमें कैमरा ऑन करके बोलिए हाय गाइस वीडियो बनाए वीडियो अंदर से तो डर लगता है क्या बोल पब्लिक सामने से सब बैठे हैं 10-20 बार रिटर्न लिए लेकिन तभी हो नहीं पाया वीडियो बना तो बोल नहीं की तो बनाइए दूर करना बहुत जरूरी है यस सर क्योंकि बस आपको सब नॉलेज है बट आप शेयर नहीं किया तो रखा भी मांगे हाँ तो क्या फायदा अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस नहीं